Okay. Good morning. Just a minute. Yep. Let me just check if everything is fine because in the morning I just couldn't take the class because of some glitch. And let me just see if you guys have joined. How will you join? I have not given you the link. Okay, so no problem. Now, guys, let me just tell you that today, in today's class, what we are going to do is we are going to understand the essentials and we are going to understand notice writing in detail. And trust me, guys, this is the best class if you are willing to score good in notice because notice is something that you can actually score good in. So, um, yeah, so we are going to focus on that. So everything that you need to know about notice is covered in this class, so just don't worry about it. And let me just quit the mails because these are actually problematic sometimes. And okay, so yeah, that's pretty much it. I'm just calling all the students because they actually asked me to, and I actually forgot. So yeah. Now that's done. So we are going to start with our class today, and yeah, that's the only thing that we can do right now. Okay, and yep. So, hi guys, hi. All right, thank you so much for joining, and yeah, let's start with today's class. And actually, let's wait for more people to join. But okay. आपकी टेलीग्राम में गुस्से वाला इमोजी देखकर भाग भाग के आ गया मैं अरे वो स्पेशल क्लास के लिए था इट वाज नॉट फॉर दिस देयर आर स्पेशल क्लासेस इन द इवनिंग गाइस फॉर इंग्लिश so if you are actually willing to come join me in the special classes because it's going to be amazing and we're going to actually have the doubt learning sessions and we can talk that I couldn't while I was taking your class on YouTube. So you can join me at 5 or 6:15. So emoji special class ke liye tha because you know what, I'm actually working the entire day, so I was like, I created this class for you, you have to join. So yeah. Okay, hi, good morning, how are you guys, my champions? Okay, so in today's class we are going to study notice, but before we do that we are going to understand what an Academy Plus subscription is because I don't want to get it on me that ma'am you didn't tell us about this beauty. So yeah, an Academy Plus subscription has got a lot of features. Give me 2 minutes and you will fall in love with it. You can actually learn live from the comfort of your home, and you get unlimited access. It's just like Netflix. You take the subscription and you can literally watch anything. Same is the case here. You take the subscription for class 11th and 12th and you can literally watch any subject or any teacher's class. Amazing, right? Top educators on your one platform. See, in India we have a lot of top educators that you must you must be like, okay yaar, I want to study with that educator but I can't go to Delhi or maybe Mumbai or maybe Chennai or somewhere. But now you don't need to worry because you can actually get all of them at one single place. So I was studying Indigo chapter from your playlist only and your notification came for this class. High five! How amazing are you? Alright, so you can get exhaustive coverage of syllabus, regular doubt learning session, live test series. Oh my god, this is my favorite. And doubt learning session is also my favorite. See, only studying or something won't help you. You should also get a chance to clear your doubts, right? Do you agree with me? You do, right? So when I actually turn off the comments in the YouTube classes, you actually feel bad, right? Because you can't ask your questions. Exactly is the case in any other class. So on Plus, we make sure that you actually can ask the doubts in between class and you get a dedicated class for it too. Isn't that amazing? Please say it is. Study material, you're going to get PDF form ka study material, so you can always download all the beautiful content that I deliver or any other educator deliver. Answer writing sessions, mentorship and guidance, and trust me, I am always ready for mentorship and guidance, and for that purpose only I'm coming up with amazing special class from tomorrow, and you are going to love that class. If you feel less motivated or if you don't know what to do and you have a lot of questions and you're seeking wisdom, then you are at the right place because I can do that also.
What's more, daily practice section, we have weekly mock test series, live quizzes, subjective test series went really well. So just in the previous week, we started subjective test series and it was amazing. So you have to try this one यार. आप सिर्फ YouTube से स्पेशल से प्लस से पढ़कर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते हो जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो, लिखते नहीं हो. It's not going to work out. If you want, you can consider taking Iconic subscription. I personally love Iconic subscription because trust me, when you'll check out my profile, you'll get to know. You can use code SDC18 to get 10% discount on your Plus or Iconic subscription. And this SDC18 is something that you can use for your special class also. What are special classes? Special classes are free classes that we offer on the platform, and these free classes need to be, you need to unlock them. To unlock them, you have to apply certain code, and you just apply this code and watch the class for free. But you can apply the same code for Plus class. Those are paid classes and you get 10% discount and pay the balance. Alright, so yeah, that is it. Okay, मैम पास तो हो जाऊंगा ना. हाँ मेरे बच्चे, don't worry. अभी मैं आपको ये तैयार कर रही हूँ, मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि 90 से 100 लेके आना है तो आपको क्या करना है, और आप पास होने की बात कर रहे हो. यू जॉइन प्लस, नो, यू विल गेट सो लाइक आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा, रोज आपके इतने सारे टेस्ट होंगे कि आप कैसे पास नहीं होंगे. डोंट वरी, सना टीम विल कॉन्टैक्ट यू. डोंट वरी, आपने फॉर्म भर लिया ना, गिव देम 7 days एंड यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन. ओके, दिस इज एन अकेडमी एंड लेट्स क्रैक इट. Okay, so first of all, let me just tell you that there are certain points that you need to keep in mind, guys. Certain points that you need to keep in mind while writing the notice. Now, मुझे पता है कि आप लोग ना, you guys are notice. What? Who practices notice? Because I know you have been studying notice from when you were in class 4th. Maybe, maybe not. So, I know, I can understand that feeling, but trust me, guys, you need to work on notice because it's going to come for 3 marks, and when you actually sit and write the paper, no, you actually look for some question that can give you marks. Notice is something that can be a cakewalk for you if you know how to actually write perfect notice and get 3 out of 3. Okay, so we are actually aiming at that it becomes a cakewalk for us and you can always score 3 out of 3. Our aim is not to score 2.5 or 2 or 1.5. No, that's not our aim. That you can do on your own also. Okay, you don't need me for that. So yeah, that you can do on your own, but our aim is to score 3 on 3. So let's just focus on it. And before we start the class, before we begin, please say hi to Mr. Cup, because I have cold and I don't want to take offs. So yeah, you can say hi to Mr. Cup. Alright, the screen is not clear. You can always increase the quality of the screen. आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो, और नहीं तो मैंने आपके लिए जूम भी कर दिया है. सो डोंट वरी, बी हैप्पी. ओके, अब तो दिख रहा है सब कुछ. Alright, points to be kept in mind. First point, write the name of organization, institution, office issuing the notice. Okay, see, on the top of everything, you have to mention the organization that you're writing the notice for. Okay. Word notice is always written under the name of organization, institution and office. Organization के name के नीचे हमेशा word notice लिखा होगा. NOTICE हमेशा लिखा होना चाहिए, कैपिटल्स में लिखा होना चाहिए. ठीक है. दूसरा, डेट ऑफ इशूइंग नोटिस इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको डेट लिखनी है और डेट फुल होनी चाहिए. तो डेट फुल होने के पीछे रीजन ये है कि आप ना अगर कुछ ऐसा लिखते हो, लाइक अगर आप न्यूमरिक लिखते हो, आप नंबर में लिखते हो, प्रॉब्लम ये है ना कि अमेरिकन अलग मानते हैं और ब्रिटिशर्स अलग मानते हैं, और इंडिया ना अभी डिसाइड नहीं कर पाया है कि वो कौन सा मानना चाहता है. सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो अगर आपने न्यूमरिक लिखा ना तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. इस वजह से प्लीज नंबर में ना लिख के और पूरा कंप्लीट डेट लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डेट इज टुडे? 12. So you have to write 12th January 2021. Breaks my heart whenever I say that. But yeah. So heading and subject should be eye-catching, brief and precise. Now, those of you who write the entire story in title, pakode banenge tumhare. Don't do that. Don't do that. Okay? You actually end up writing the entire thing in the title. Please don't do that. Please keep the title brief and eye-catchy. Okay? Just keep it brief, because if you're going to write everything, what will you write in notice, huh? Please don't do that.
Okay, then we have the content must include complete information. कंटेंट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर आपको नहीं पता है कि ये इन्फॉर्मेशन में मैं क्या लिखूं, तो बस पूरे कंटेंट में हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये आंसर करते चलो. ये आंसर करते चलोगे, अपने आप कंटेंट बनता जाएगा. कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, यू नो, दैट वे. Purpose of notice should be clear. Yes guys, please make the purpose very clear. Okay, आपको purpose बहुत ज़्यादा clear रखना पड़ेगा. क्यों लिख रहे हो ये notice, है ना, आपको भी clear होना चाहिए और अगला बंदा भी clear हो जाए. नेम और डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी शुड बी मेंशन. नाम मेंशन होना चाहिए जो ये नोटिस लिख रहा है उसका, और उसका डेजिग्नेशन क्या है वो भी मेंशन होना चाहिए. लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ल्यूसिड होनी चाहिए और थर्ड पर्सन में लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, जैसे कि रिटन इन द थर्ड पर्सन. तो प्रोनाउंस जैसे कि आई, यू, मी, माइन, योर, आर, ये नहीं यूज होने चाहिए, थर्ड पर्सन यूज होना चाहिए. चॉइस ऑफ टेंस नेचर ऑफ नोटिस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो कीप दैट इन माइंड. एंड नोटिस मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी सुनो, देयर इज द सीक्रेट. नाउ लिसन टू मी. नोटिस मस्ट बी देयर इन बॉक्स बिकॉज बॉक्स रिप्रेजेंट्स द नोटिस बोर्ड. बॉक्स का मतलब होता है नोटिस बोर्ड, तो हमेशा बॉक्स में होना चाहिए. और एक चीज और मैं बता देती हूँ, आपने कभी ये नहीं देखा होगा ना कि नोटिस बोर्ड का एक मतलब आधा बोर्ड इधर लगा हुआ है और आधा बोर्ड इधर लगा हुआ है. वी डोंट सी दैट, राइट, डू वी? So we don't see that. That's why there is no need of breaking the box. Please don't break the box. If you don't have space, please choose another page. फुल पेज ले लो चाहे, पर आधे आधे पेज की कंजूसी करके और आधा नोटिस इधर और आधा नोटिस उधर मत करके आना, बिकॉज इट लुक्स नॉट ओनली अगली बट इट इज इनएप्रोप्रिएट. बिकॉज हाउ कैन नोटिस बोर्ड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स? आर यू गेटिंग मी? Alright, yes, absolutely correct, Vishali. The word limit for notice would be 50 words. Word limit 50 words का रहेगा. And yes, बबलू जी आ सकता है, बिल्कुल हर बोर्ड में आएगा. Okay, अब हम देखते हैं. ओके, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट. अभी नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट के लिए हम लोग देख लेते हैं. यू आर अविनाश, ऑलराइट, cultural secretary of Queen Mary Convent, Lucknow. You want suitable students to represent your school in inter-school English debate to be held shortly. Providing the necessary details, write a notice inviting participation. Now, अब इसका हम फॉर्मेट सीखते हैं. ये देखिए, ये मैंने आपके लिए पूरा यहाँ पर फॉर्मेट बताया है. ये 4 नंबर का नहीं है, थोड़ा सा याद रखिएगा, नंबर्स मत देखिएगा. ये 4 नंबर का नहीं है, इट्स गोइंग टू कम फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, ओके. अब आप नोटिस लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप लिखोगे क्वीन मैरी कॉन्वेंट लखनऊ. क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ऑफिस. इसके बाद में जस्ट नीचे आएगा नोटिस, कैपिटल्स में लिखा हुआ होगा नोटिस. ये वर्ड नोटिस जरूरी है क्योंकि इससे सामने वाला जो इंसान है उसको पता चल जाएगा कि वो क्या देखने आया है. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन कम्स योर डेट. अब जैसे कि मैंने आपको डेट बताया था, डेट शुड बी फुल, डेट पूरी होनी चाहिए. तो यहां पर लिखा हुआ है 8th August 20 एंड XX. ओके, सो डेट फुल होनी चाहिए. फिर आ गया हमारा हेडिंग इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट. ठीक है, ज्यादा नहीं है, ना तो ज्यादा कुछ बता रखा है और ना ज्यादा ऐसा है कि छुपा रखा है. जो भी इंसान इसको पढ़ेगा इट विल बिकम क्लियर टू हिम और हर, राइट. सो इंग्लिश इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट इज ओके. इसके बाद में आपने बॉडी लिखा. अब बॉडी में कंटेंट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं. कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है. ओके, तो ये सारे आपको ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कंटेंट में लिखनी है. इसके बाद में आपका नाम आ गया अविनाश शर्मा, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, और नीचे आपका डेजिग्नेशन आ गया जो क्वेश्चन में गिवन था. लेट मी जस्ट टेल यू प्लीज, अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन गिवन नहीं है तो डेजिग्नेशन अज्यूम मत करना. लाइक आई नो यू गाइज नो दैट यू कैन ऑलवेज अज्यूम नेम XYZ, आप नेम लिख सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन गिवन नहीं है तो डेजिग्नेशन अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. आप केवल नाम लिख सकते हो एंड दैट विल बी इट. ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड ये रहा आपका फॉर्मेट. अब इसको बॉक्स में जरूर डाल देना बिकॉज बॉक्स नोटिस बोर्ड बताता है और इसीलिए इसको बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा.
आप कंप्लीट सिलेबस कराओगे क्या? हाँ हाँ, टुवर्ड्स द एंड चल रही हूँ मैं तो सिलेबस को कंप्लीट करने के। आप लेट आए हो मेरे बच्चे, मैंने लिटरेचर ऑलमोस्ट करा भी दिया, पूरा ही करा दिया। हम्म, ऑल राइट, चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नोटिस। लेट्स सी टाइप्स ऑफ नोटिस हियर। सो पहला टाइप ऑफ नोटिस हो सकता है हमारा नोटिस फॉर मीटिंग। तो आपके जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में वो इसी टाइप के रिलेशन में आएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं आपको हर टाइप का नोटिस बता देती हूँ और उसका एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। नोटिस ऑफ फॉर मीटिंग आ सकता है। अब नोटिस फॉर मीटिंग में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे जब भी नोटिस ऑफ मीटिंग फॉर मीटिंग आप बनाओगे ना। वैल्यू पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। हु हैज कॉल्ड द मीटिंग लिखोगे, एजेंडा एंड पर्पस ऑफ मीटिंग लिखना है, डेट टाइम वेन्यू फॉर मीटिंग लिखना है, हु इज टू अटेंड द मीटिंग लिखना है, नंबर ऑफ पर्सन डिपार्टमेंट इंक्लूडेड लिखना है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द पर्सन कॉल फॉर मीटिंग लिखना है, सिग्नेटरीज विद नेम एंड डेजिग्नेशन लिखना है। फर्दर डिटेल्स में आप कॉन्टैक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन लिख सकते हो। दैट्स इट। Write a notice for a meeting for security employees with the director of their agency to discuss security hazards and arrive at specific resolution. अब ये देखो मीटिंग के नोटिस का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है, ये रहा देखो इसका एग्जांपल। मैं यहाँ पर बॉक्स नहीं बना पाई, बट बॉक्स आपको बनाना है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैंने बॉक्स नहीं बनाया है बट यू हैव टू मेक इट। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नीचे हमने लिख दिया नोटिस। नोटिस आप कैपिटल्स में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि आप हाईलाइट कर पाओगे। फिर उसके बाद में डेट लिख दिया और हमने हेडिंग लिख दिया। नाउ क्योंकि ये टाइप हुआ है तो इसमें थोड़ा सा वो सेंटर वेंटर वाला काम नहीं हो पा रहा है, बट मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट बता दिया है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इसका एक बार हम देखते हैं इसका पूरा कंटेंट। ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सुपरवाइजर अपॉइंटेड बाय टाइगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स गुड़गांव आर रिक्वायर्ड टू अटेंड अ मीटिंग टू बी हेल्ड इन डायरेक्टर्स ऑफिस एट 9 AM on Friday 23rd February 2021. The agenda of meeting is minutes of last meeting for discussion and approval of security hazard, suggestion for better safety, how to overcome complication। ये मन से बनाया हुआ है सब कुछ। Further details please contact the undersigned। undersigned कौन है? राजेंद्र पाल, और ब्रैकेट में लिख दिया सेक्रेटरी। सो इफ यू आर वंडरिंग कि मैम क्या नोटिस को हम बुलेट्स में लिख सकते हैं? हाँ, आप नोटिस को बुलेट्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, तो देर इज नो प्रॉब्लम, आप आराम से नोटिस को बुलेट में लिख पाएंगे। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया नोटिस ऑफ मीटिंग का। यहाँ पर आपको दूसरा एक नोटिस मिला है। सो यू आर रोहन एंड रोमा द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्कूल डिपार्टमेंट कमिटी। नेक्स्ट वीक द कमिटी इज मीटिंग टू प्रिपेयर अ कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज। अब ये भी एक मीटिंग का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी जल्दी से, और इसको होमवर्क करके आओगे। और अगर आपको इसमें अगर हेल्प चाहिए हो, अगर आपको हिंट चाहिए हो, तो आंसर का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या करना है। और उसके बाद में आप एक बार मैच कर सकते हो कि जो आपने लिखा है वो आंसर से मैच हो रहा है या नहीं। एंड लेट मी नो इफ यू फेस डिफिकल्टी, यू नो वेयर टू फाइंड मी। लिंक नीचे है, स्पेशल क्लास में आके पूछ सकते हो, प्लस क्लास में आके पूछ सकते हो, तो मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे है, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। ऑल राइट, आ जाते हैं दूसरे टाइप के नोटिस पे। तो अभी तक हमने एक टाइप का नोटिस देखा, एंड एक टाइप का नोटिस कौन सा था? नोटिस जो मीटिंग वाला। अब टाइप 2 ऑफ नोटिस आ गया, नोटिस फॉर इवेंट्स। देखो बच्चों, आपके जो प्रीवियसली पूछे गए नोटिस है ना, उनमें ज्यादातर देखा गया है कि नोटिस फॉर इवेंट्स ही पूछा जाता है। सो नोटिस फॉर इवेंट ही पूछा जाता है ज्यादातर, तो आप इसको तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। तो एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। स्पेशल क्लास फ्री है, हाँ जी स्पेशल क्लास फ्री है, बट आपको कोड से उसको अनलॉक करना पड़ेगा, और कोड है SDC 18, वो ऐसे खुलेगा नहीं। तो अगर उसको फ्री में देखना है तो उसके लिए कोड लगाना पड़ेगा SDC 18, SDC कैपिटल में विदाउट स्पेस 18, तो उससे स्पेशल क्लास खुल जाएगा। एक बार खोलना पड़ेगा, फिर आप सारे स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। ऑल राइट, नोटिस फॉर इवेंट्स। नोटिस फॉर इवेंट्स में देखो ये ज्यादातर पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मेंशन करना होगा? आपको आपको हु इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट का क्वेश्चन आंसर करना है, ऑब्जेक्टिव, पर्पस या ओकेजन बताना है, डेट टाइम ड्यूरेशन और वेन्यू बताना है इवेंट का,
कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है वो बतानी है आपको, लास्ट डेट फॉर रजिस्टरिंग नेम्स या डिपॉजिटिंग अमाउंट, ऐसा अगर कुछ है आपने कर रखा है कोई लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का या ऐसा कुछ, तो वो मेंशन करना है आपको। कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अगर आप करना देना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप आप एक ऐसे मतलब एक ऐसे क्वेश्चन पे आंसर लिख रहे हो जो होली सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है, तो मान लो आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन किसी को देना चाहते हो कि यू कैन सेलिब्रेट होली बट द सेलिब्रेशन वुड बी वाटर फ्री सेलिब्रेशन, तो ऐसा होना चाहिए। तो आप ऐसा हमेशा सजेशन दे सकते हो और उसके बाद में कॉन्टैक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर लिखना है। यस अरुण, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, राइट अ नोटिस फॉर 10th ऑल इंडिया पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑन 18th November 2021 प्रोवाइड द एसेंशियल डिटेल्स। चलिए देख लेते हैं इसको भी। GGS पब्लिक स्कूल दिल्ली नोटिस, हमने पूरा एक आराम से डेट डाल दिया है और बीच में हेडिंग दे दी है। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है। All the students from class 6 to 12 of 4th to 12 are hereby informed that school is organizing the 10th All India Poster Making Competition on 18th November 20XX in the school ground। ये देखो वेन्यू भी आ गया, from 9 AM to 12 noon, okay, टाइमिंग भी आ गया। It is a golden opportunity for budding artists to show their talent, ये हमने उनको थोड़ा सा लालच भी दे दिया। जूनियर कैटेगरी टॉपिक, सीनियर कैटेगरी टॉपिक, ये अगर आप चाहो तो इसको ओमिट भी कर सकते हो क्योंकि 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, तो इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज ओमिट दिस। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देमसेल्फ विद अंडरसाइन लेटेस्ट बाय 10th November और फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, ये हमेशा लिखना है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, ये हमेशा लिखना। और अंडरसाइन में जो भी इंसान लिख रहा है या जो भी आप जिसको भी लिखवाना मतलब बताना चाहते हो कॉन्टैक्ट करने के लिए, उसका नाम आ जाएगा विद डेजिग्नेशन। अनीश, फॉर्मेट में आप एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, नीचे उसके जस्ट नोटिस की हेडिंग डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर डेट डालेंगे जो कि फुल होनी चाहिए, उसके जस्ट नीचे मिड पर हेडिंग डालेंगे, कॉन्टैक्ट लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर नाम और डेजिग्नेशन लिखेंगे। ये सब कुछ बॉक्स में होना चाहिए। You are the secretary of music club of your school. Your school is organizing its 5th inter-school music carnival for the student of class now 6th to 12. Write a notice inviting those interested to appear for an audition in the presence of renowned singer Rahmat Ali Khan. Wow. Provide the other necessary details. Take a screenshot. This is your homework. Take a screenshot quickly. This is going to be your homework. I'm going to provide you hints also, don't worry. All right. Okay. So this is the hint. तो if you write this और आपको ऐसा लगता है have I written amazing या फिर मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो एक बार इस हिंट के साथ चेक कर लीजिएगा। एक बार इसके साथ चेक कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि जो लिखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो यू कैन ऑलवेज गेट द आइडिया हैव यू रिटन गुड या ना। ओके, टॉप टाइप 3 तरीके का जो टॉप हो गया, टाइप 3 तरीके का जो नोटिस है वो है लॉस्ट एंड फाउंड वाला। अब लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो है ये थोड़ा कम आता है बट फिर भी देख लेते हैं। हर्ष सेज थैंक्स मैम, ड्यू टू योर क्लास आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द पोएम्स। ओहो, हाई फाई। ओके, लॉस्ट एंड फाउंड वाला थोड़ा कम आता है बट फिर भी एक बार को देख लेते हैं। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट लॉस्ट और फाउंड, डेट टाइम डे व्हेन यू लॉस्ट और फाउंड इट, place where you lost or found it, brief description, identification marks, whom to contact, when and where, a suitable gift reward for the person who returns that article or object, contact person and designation and class and address and phone number। so ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होती हैं। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ऑन एन आउटिंग विद योर फ्रेंड्स, you forgot your school bag in cafe coffee time launch of the famous DT Mall's Shalimar Bagh. The moment you realized it, you rushed back only to find it gone. Draft a notice to be put on the notice board. अच्छा, अभी आपने अपना बैग खो दिया है तो अभी हम लोगों को बस बैग ढूंढने के लिए एक नोटिस बनाना है। DT शालीमार बाग नोटिस, डेट डाल दिया, स्कूल बैग लॉस्ट, नीचे लिखेंगे all are hereby informed that a school bag was lost today
ओके. ओके. ईटीपी का क्लास प्लस पे कब से होगा? ईटीपी नहीं, आप ईपी बोल रहे हो ना? हाँ. हाय कुहू, आपका नाम देख के मैं समझ गई थी आप ईपी के लिए पूछ रहे हो. हाँ बेटा, इस वीक का ही सोचा है मैंने. लाइव होते ही कोर्स में बता दूंगी. मेरी तरफ से सबमिट हो गया है, तो एक बार देख लेते हैं कब लाइव होता है. ठीक है. Okay, all are hereby informed that a school bag was lost today at around 3 p.m. in the cafe coffee time lounge. It is a black colored Adidas school bag. Wow. It contains class 12th English and Physics NCRT book, textbook. Oh, okay, who takes English and Physics to coffee, like the cafe? Okay, stationery pouch, school diary of St. Mark's High School, and a register. Register और पेन का दुख हो रहा है मुझे तो. Anybody who finds it is requested to inform the undersigned or phone or leave it with the manager of Cafe Coffee Time Lounge. The person returning it to me will be handsomely rewarded. Why are you rewarding a person to return a physics book to you? Why are you doing that? Don't do that. Oh, Sanjana Kaur. Okay, got it. लड़की है. लड़कियां बड़े मतलब बुक को, डायरी को और पेन्स के लिए बड़ी ऑब्सेस्ड होती है. यू नो, दे कांट लूज इट. दे कैन गिव उतने का उतना पैसा, बट दे कांट लूज दैट. अब मेरे को समझ में आया. अभी यहाँ पर कोई लड़का होता तो वो बोलता है तू रख ले यार. ओके, हाय. ऑल राइट, this is question number 2. Hi everyone who's joining. Thank you. You are Jatin Raheja of class that is 11th. You found a purse in the school library. Write a notice to notice board of your school asking its rightful owner. Oh, ये कौन करता है? मुझे तो पर्स मिलता तो मैं तो जेब में डाल लेती. Just joking. कभी मिला ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटी मिला नहीं. जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा आई लेट यू नो. What is your name, ma'am? I am Shipra Mishra. Okay. सेंट एंजल स्कूल्स लुधियाना नोटिस. अभी हम लोगों को स्कूल लाइब्रेरी में एक पर्स मिला है एंड वी हैव टू रिटर्न दैट सैडली. All are hereby informed that a purse was found on the floor of school library on this. It is a black colored purse with some cash and a small calendar. Who keeps a calendar? Okay. There were also some little bits of paper inside with some notes written on them. Yeah, this can be literally my purse, you know, with some cash. With some cash and a calendar and some bits of paper. Okay, the genuine owner of purse can claim it from undersigned after giving necessary particulars about the purse content. Oh, I'm coming. Okay, thank you. All right. Anish, thank you so much for asking my code. It's SDC 18. I think I just told you SDC 18 or SDC Live, whatever. You can use both if you want. All right. Next one is type 4. Type 4 notice होता है कोई tours का या फिर फेयर्स का, एग्जीबिशंस का, कैंपेन्स का, सेमिनार्स का, वर्कशॉप्स का, डिबेट्स का, ग्रुप टॉक्स का. ये ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये टाइप 4 वाला नोटिस लिख सकते हो. अरुण, मैंने आपको रिप्लाई किया था, मैंने बोला था कि हाँ बच्चे मैं बना दूंगी, डोंट वरी. ओके, गिव मी अ मिनट. ओके, यस अरुण, आई हैव हर्ड इट फॉर द लाइक व्हेन यू नो टोल्ड मी फर्स्ट ना, तभी मैंने रिप्लाई कर दिया था. शायद आपने सुना नहीं. I'm Shipra is my sister's name, but you are a Mishra. Obviously, if I were your sister, आप पहचानते नहीं क्या? मिश्रा देख के समझ में आया क्या आपको? क्या बात कर रहे हो? Okay, but it's okay. Good, thank you. Good morning, good morning. So इसमें देखो वैल्यू पॉइंट्स देखो एक बार. द पॉइंट्स गिवन बिलो आर रिक्वायर्ड while writing a notice towards fairs, exhibition, campaigns and seminars, workshop, debates, group talks, etc. Name and nature of event डालना है आपको. Objective, purpose और occasion लिखना है. Subject of program, seminar, debate, workshop, ये सब कुछ. पार्टिसिपेट और अटेंड कौन कौन कर सकता है ये भी मेंशन कर देना. कोई एंट्री फीस या एक्सपेंडिचर है तो वो भी बता देना. डिबेट के लिए अगर ये एंट्री फीस लिखेंगे ना, कोई नहीं जाएगा. पीपल विल बी हम तो नहीं जाएंगे, डिबेट सुनने के लिए कौन फीस देगा यार. और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी आप दे सकते हो. थैंक यू रोहित, आई ग्लैड यू लाइक्ड इट.
I'm glad. I'm sorry. You are Rishabh Malhotra, head boy, Columbus Public School, New Delhi. Okay. Write a notice for the school notice board inviting names for a trip to Mumbai and Goa. Okay, I'm coming. Giving detailed information to the students. यार ये कौन सा स्कूल होता है यार ऐसा? चलो अच्छी बात है. Okay, so देखते हैं नोटिस लिखते हैं. सो ट्रिप टू मुंबई एंड गोवा का हेडिंग हमने डाल दिया है एंड इसके बाद में देखो डिटेल्स में द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू मुंबई एंड गोवा ड्यूरिंग विंटर वेकेशन. It will be a 12 days trip in which only students of class 11th and 12th are allowed to join. Duration details of the trip are given somewhere. I'm sorry. Then we have mode of travel. हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से जाने वाले हैं. Accommodation 4-star होटल का आपकी कॉस्ट पड़ेगी 21,000 पर पर्सन. मेरे को नहीं जाने का है. नहीं जाना है मेरे को, मैं खुद चली जाऊंगी. थैंक यू. Interested students should register their names along with total cost in cash or demand draft drawn in favor of school and no objection note duly signed by their parents to undersign latest by this. Late entries will not be entertained. Okay. ऑल राइट. दूसरा तरीके का नोटिस यहाँ पर है. स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार होमवर्क के लिए ट्राई करना एंड मुझे बताना आप लिख पा रहे हो या फिर नहीं. एंड फिफ्थ तरीके का जो टॉपिक है वो है अपील करना, वार्निंग करना, गाइडलाइंस या मैसेज और इन पब्लिक इंटरेस्ट. कौन लिखता है ये लिखते हैं भिड़े साहब. एकमेव सेक्रेटरी. सो एकमेव सेक्रेटरी लिखेंगे ये. ऑल राइट मैम, इज दिस वीडियो रिकॉर्डेड? नो. I'm glad that you're feeling it's recorded. But no. Alright, so we have whom to appeal, warn, ये लिखना है आपको. Target audience लिखना है. Objective और purpose लिखना है. Name of the person लिखना है. Date, time, place, venue लिखना है. Wording of appeal और slogan लिखना है. Consequences लिखने हैं. Punitive action लिखने हैं. Specific important instructions लिखने हैं. Contact person और designation लिखना है. अब यश मैंने आज नोटिस स्टार्ट किया है तो मैं पूरा जो राइटिंग सेक्शन है वो करवा दूंगी बच्चे. डोंट वरी. आप 4 बार पूछोगे तो भी यही आंसर आएगा. करवा दूंगी यार, भरोसा रखो. अभी मैं कब से आपको पढ़ा रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, डोंट वरी. एक वीडियो पैसेज पर होना चाहिए. ओहो भूषण जी, बिल्कुल आपको बोला है ना कि ये पूरा सुपर रिविजन बैच है, चिंता मत कीजिए. आपका पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होगा. अनअकैडमी ने डेफिनेटली ये चीज़ का बीड़ा उठाया है कि वो आपको ये इतना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे. जस्ट डोंट वरी. मैं आपको डेट्स भी बता दूंगी. कल बताती हूँ मैं आपको सारी डेट्स कि कौन कौन सी डेट्स पे क्या क्या होगा. ठीक है. ओके मैम, yesterday was my English pre-board. How was it? मैम, poetic devices already taken my बच्चा, already taken. ओके चलिए जी. सो ये रहा हमारा तो कुछ गाइडलाइंस एंड ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. नाउ यू आर समिता एंड सुनील, सेक्रेटरी AVM हाउसिंग सोसाइटी एंड ओके एंड कहाँ गया? You're going to collect charity for people affected by recent floods. That's good. Draft a notice appealing for donations of relief products like clothes, money, grains, etc. All right. So, yeah. You have to write the organization's name. That I must have forgotten, but yeah, you have to write. Then notice, then date, and then heading. Then you are going to write, this is to inform all residents of society that the society committee members have agreed to organize a donation drive in aid of flood affected people. The collection for donation drive will take place on 20th September 20XX in the society ground from 10 a.m. to 7 p.m. One can donate clothes, money, grains and other articles. By doing this, one can show his or her humanitarian nature. All the donated items must be properly packed. The donation will be sent to Prime Minister for action. The members of society are urged to donate in large numbers for this noble cause. Wow, this is amazing. Okay, and this is your homework. Quickly take a screenshot. All right. Yes.
यस अनंत, आई नो, मैंने बताया था ना आपको कि इस तरीके का पेपर आने वाला है, तो डोंट वरी। ऑल राइट, बता दो। हाँ, अथॉरिटी का नाम मैंने बताया ना कि हो सकता है मिस हो गया होगा। अर्चना, दो तरीके से अपन लिख सकते हैं, एक तो पूरा पैराग्राफ में, और एक चाहे तो हम बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। सो यस, दैट कैन बी डन। ऑल राइट, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, लास्ट तरीके का नोटिस देख लेते हैं, जहां पर आप चेंज ऑफ नेम के लिए नोटिस लेके आते हो। तो यहाँ पर आप अटेंशन ड्रॉ करते हो पहले लोगों का, फिर आप उनको बताते हो चेंज के लिए एग्जिस्टिंग से करंट जो होगा, रीजन फॉर चेंज और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये नोटिस नहीं होता है एग्जैक्टली ये एडवर्टीजमेंट जैसा होता है, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट जब मैं करवाऊंगी ना, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है। अगर आप मुझसे पूछो ऑनेस्टली, तो दो ही तरीके के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो आपका इवेंट वाला, और एक वो जो वर्कशॉप और वो वाला था। इसके अलावा एज सच क्वेश्चंस पूछते नहीं है। ओके, ऑल राइट, आई डिड नॉट नो दैट रोहित, थैंक यू। All right, you have changed your residential address from house number 183 Bank Street, Karol Bagh, New Delhi to house number 13B, West Patel Nagar, New Delhi. Draft a notice to be published in the local newspaper informing people about the same. You are Panchi Khatri. Okay. आपने क्या इनविटेशन करा दिया? नहीं मेरे बच्चे, ये अभी राइटिंग पोर्शन का पहला टॉपिक कराया है मैंने, अभी पूरा राइटिंग और रीडिंग पोर्शन बचा है। एक बार फिर से बता दो पेपर कैसे आएगा। जी, मैंने वैसे तो बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो, और नहीं भी तो मैं बता देती हूँ। पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होके आएगा। एक 40 नंबर का पार्ट होगा जिसमें एमसीक्यूज आएंगे, और दूसरे 40 नंबर में आपको लिखना होगा। तो एमसीक्यूज वाला भी मैंने वहाँ बता रखा है, और जो हमारा जो सब्जेक्टिव वाला होगा उसमें राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर आएगा। ऑल राइट, व्हेन विल यू टेक क्लास ऑफ 11th की क्लास सुबह 8 बजे ले रही थी मैं, बट अब नहीं लूंगी। 11th की सुबह नहीं लूंगी, मतलब अभी 10 बजे ऐसा कुछ टाइम लूंगी यार, 8 बजे नहीं हो पाता। मैम सारी क्लासेस यूट्यूब पर होगी क्या? नहीं बेटा, मतलब ये तो आप देखो, आपको जो भी चीज़ हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं वो प्रोवाइडेड है यहाँ पर। इसके बाद में अगर आप स्पेशल देखते हो तो वहाँ पर और कंटेंट है, और प्लस में तो यू हैव ऑल नेक्स्ट लेवल कंटेंट, और वहाँ पर आपको हेल्प मिलता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको 90 से 100 के बीच में स्कोर करना है ना, यू शुड गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर ना आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, असाइनमेंट्स और टेस्ट मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी नहीं समझोगे, लेटर समझोगे, बट तब ना बहुत लेट हो जाएगी। अभी मई में है पेपर, अभी भी आपके पास टाइम है, आप ले सकते हो, और वहां पर ना आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। एप्लीकेशन फॉर जॉब करा दीजिए, करा देंगे। ओके, हाँ जी शुभम, तो हम लोग कर लेंगे ना, नया कोर्सेज हमने लॉन्च कर तो लिए, क्या चिंता कर रहे हो आप? ऑल राइट, ओके मैम, आप प्लस पर वोकैबुलरी प्लस पर नहीं लेती हूँ, स्पेशल पे लेती थी। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा टॉपिक, यू हैव चेंज। ठीक है ठीक है, नोटिस लिखेंगे, फिर हम लोग डेट लिखेंगे, और उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे। वी आर गोइंग टू राइट, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न that I, Panchi Khatri, daughter of S.K. Khatri, have changed my residence from house number this to this. Due to unavoidable circumstances, all bakery customers can reach at me to my new address for any order regarding homemade bakery items. Okay, I got you. This is amazing. Now, this is the last notice. Please take a screenshot. Do it as your homework. डू इट एज योर होमवर्क, एंड दैट्स इट। ये लीजिए, हो गया हमारा मस्त कंप्लीट पूरा नोटिस। आई होप आपने सारे तरीके के नोटिस यहाँ पढ़ लिए होंगे, और आपको सारे तरीके के नोटिस समझ में आए होंगे। आज मेरी स्पेशल क्लास है शाम को 5 बजे और 6:15 बजे, तो आप आराम से मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अमेजिंग क्लास है, और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा, तभी वो खुलेगी, नहीं तो वो लॉक रहती है। तो आपको उसके लिए कोड लगाना पड़ेगा, और मैं बता देती हूँ आप कौन से कोड को यूज़ कर सकते हैं। आप कोड यूज़ कर सकते हैं SDC18। इस SDC18 के कोड से आप स्पेशल क्लास को फ्री में अनलॉक कर सकते हैं,
और प्लस पे 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ये कोड यूज कीजिएगा। सो ऐसा है। ऑल राइट। यूट्यूब में कब होता है क्लास? यूट्यूब में अभी होता है क्लास 11 बजे। सो या तो आज हम लोग स्पेशल पे पढ़ने वाले हैं एंड ये सब करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो स्पेशल पे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डोंट मिस द स्पेशल क्लास, इट्स फ्री। तो फ्री है तो आप आराम से ले सकते हो, एंड इफ यू वांट यू कैन कंसिडर टेकिंग प्लस ऑल्सो। नाउ दैट्स प्रीटी मच इट गाइज, आई विल सी यू गाइज टुमारो। आई होप आपको नोटिस पसंद आया हो। आप थम्स अप कर दीजिएगा पूरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप चाहें तो आप मेरी प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और वहाँ से मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। तो जब मैं लाइव आऊँगी तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड या दैट्स इट। Thank you so much for joining today. I will see you guys later. Bye bye. Take care.